Yes, what is force? Ma'am, a push or a pull is called force. A push or pull is called force. Okay. What effects a force can produce? Force can change shape, size, direction. Yes, it can change shape. It can change the direction of moving body. It can change the shape of the body. It can change the direction of the moving body. It can change the speed of a moving body, and it can change the state of a body. Means if it is on the rest, force can make it to move, and if it is moving, force can make it to stop. Okay. So this is the effects of the force. Force is a vector quantity. What do you mean by this? Ma'am, force is a vector quantity, means it needs a direction. Yes, it has a direction also. Like if I am applying, yes, this is one box and its weight is 2 kg. And there are two people, both are applying force on this. And this is not moving. Why? Because When they both apply same force. Raise hand. Yes, Deva. Because they are applying the same force and the forces cancel each other and the net force is 0. Yes. In this case, there is force applying on this object, but net force is 0 because force is a directional, force depends on direction also. So if we are applying force on these two directions, these two with same force, that will cancel out each other. तो यहाँ पे ये जो फोर्स है बेटा वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है. दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. ओके, तो बैलेंस्ड फोर्स मींस जब when object is having no force, total net force 0, then it is called balanced force. Ma'am? Yes. Balanced force only changes the shape of the object. Yes, we can say that balanced force can change only the shape. It cannot change the direction, and it cannot change the speed. Next is unbalanced force. Actually, unbalanced force is required to make a stationary body to move, a moving body to stop, or change the speed of the body or direction of moving body. For that, what we require, that is unbalanced force. Unbalanced force means there are more than one type of forces are applying on that object, but these forces are not cancelling each other. For example, again that 2 kg box is there, and one person is applying force on this in this direction. And it is moving to this direction. Can you tell which force is applicable here? एक तो पर्सन लगा रहा है, ठीक है, और भी कोई फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ पे? Ma'am, friction. Yes, there is one more force, that is frictional force. Friction force, फ्रिक्शन फोर्स इसका डाउनवर्ड लग रहा है बेटा, और ये इसको दे रहा है. तो यानी कि यहाँ पे जो इस पर्सन ने फोर्स लगाया है, दैट इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. मैम, ओके, यस.
मैम फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द मोशन होता है ना? Yes, friction force is opposite to the motion. ओके। So next is Newton's law of motion. Yes, what is the first law of motion? Raise hands. Yes, Khushi. Ma'am, an object continues to be in rest or state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force. Yes. According to first law, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed. Okay, this is called the first law of motion, right? तो आपने नेचर में कहीं देखा है ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो मूव ही कर रहा है अपने आप और वो स्टॉप नहीं कर रहा? रितंजय? मैम अर्थ। अर्थ, बिल्कुल ठीक था. These planets, stars which are moving, they are in the motion and they are not मतलब continuously वो मूव ही कर रहे हैं ना. तो जब तक उनके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो स्टॉप नहीं करेंगे. तो वो कंटिन्यूसली जो अर्थ है या बाकी प्लैनेट्स है या स्टार्स है, these all are continuously moving. ओके, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. When we are sitting in a train or in a car or in a bus, तो बस में जब हम बैठे हैं तो यहाँ पे मान लो बस एकदम से रुक जाती है. ठीक है, मान लो ये पर्सन यहाँ पर है. बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और एकदम से ड्राइवर उसके ब्रेक लगा देता है. देन पर्सन feel jerk or na, that jerk is in this direction or in this direction? Yes, Simran. Ma'am, the person will move forward. Okay, A and B. Yes. Ma'am, A. That will feel a jerk towards A direction. Why towards A? मैम बिकॉज जो पर्सन होगा वो इनर्शी ऑफ रेस्ट में होता है और जैसे ही बस चल रही होती तो पर्सन भी इन द इनर्शी ऑफ मोशन. बस मूव कर रही है, वो भी मूव कर रहा है. मैम पर बस जब चलती है तो फिर पर्सन कंटिन्यूअस इन मोशन, वो अपने मोशन को कंटिन्यू करता है और इसीलिए वो आगे की तरफ आएगा क्योंकि बस आगे चल रही थी ना. यस, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन है बेटा. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पर्सन मूव कर रहा था पहले बस के साथ. जैसे ही ब्रेक लगी बस स्टॉप हो गई, उसका लोअर पार्ट जो है वो बस के कांटेक्ट में था. दैट आल्सो स्टॉप्स विद द बस, बट उसका जो अपर पार्ट है दैट इज नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बस, सो इट रिमेन्स इन द मोशन. इसलिए वो ए साइड में जर्क आएगा. तो इस टाइप से डायग्राम बना करके भी आपका एनटीएससी का एक क्वेश्चन आ सकता है. ओके, ये समझ आ गया बेटा? यस बेटा, आगे की तरफ ही होगा वो उसका जो जर्क है. नाउ नेक्स्ट इज ओके, एक और क्वेश्चन है. ये ग्लास है, इसके ऊपर हम एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक लगा दिया बेटा कॉइन. और इसको अगर हम स्ट्राइक करते हैं इस कार्ड को, व्हाट विल हैपन? यस रितंजय. Ma'am, the coin will be fall on the glass because the card will be moved. Then
in first point both are in rest, but when we move the cart, the coin is in rest and they fall down. Yes. तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉइन रेस्ट में है, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो ये कार्ड है बेटा, दिस विल मूव, आपने इसको स्ट्राइक किया, ये मूव करेगा, बट कॉइन विल रिमेन इन द रेस्ट. सो कार्ड इसके नीचे से निकल के इस तरफ आ जाएगा और कॉइन जो है दैट विल फॉल इनटू द ग्लास. ओके, नेक्स्ट इज second law of, yes, 9th class students, are you able to understand? Second law of motion. Yes, what is second law of motion? और कोई स्टूडेंट नहीं बताएगा? Yes, Naksh, you tell beta. Ma'am, second law of motion states that rate of change of momentum is directly proportional to the applied mass. Ma'am. Yes. Navneet, you tell beta. नए नाम आ रहे हैं, कहाँ गया ये बच्चा नवनीत? उसने रेज है. Okay. Yes, Ishan, you tell. Yes, and the rate of change of momentum is proportional to the applied force in the direction of forces. Yes. ठीक है बच्चे, दोनों डेफिनेशन ही करेक्ट हैं. The rate of change of momentum, linear momentum of a body is proportional to the force applied and it takes place in the direction of the force. Okay. So force is directly proportional to change in momentum divided by time. जब आपने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, this is rate of change of momentum. Now what is momentum? Yes, Simran. Ma'am, momentum is the product of mass and velocity of an object. Yes, momentum is product of mass and velocity of the object. Okay. So why this momentum term is given? उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम. I have two objects. This object is having mass 2 kg and one another object of same shape, but its mass is just 0.5 kg. I hit these two, like these are scales only, है ना? These two scales to someone with a velocity of 2 meter per second and this object with velocity of 10 meter per second. Which will create more hurt? किससे ज्यादा चोट लगेगी? आर्यन, यू टेल बेटा. मैम जो ऑब्जेक्ट है 0.5 kg वाला, उसको क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. यस, तो हमने जो हिट करना है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है. हम जनरली ये सोच लेते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, वो लिया हमने, तो ये हैवी ऑब्जेक्ट था, बट इसकी अगर वेलोसिटी कम है तो मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये डिसाइड करते हैं
कि कितना वहां पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, उसी को हमने क्या कहा, मोमेंटम। तो जब आप यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी कर रहे हैं, दैट इज 4, and in this case mass into velocity is 5, so this will cause more harm to the person as compared to this 2 kg object. ओके, हमारी टक्कर किसी कार के साथ हुई है ना, कार मूव कर रही थी, और एक हम टक्कर ले विद एक ट्रक है उसके साथ जो बिल्कुल रेस्ट में है, तो वो हमें ट्रक हार्म नहीं पहुंचा सकता, ट्रक की तरफ से हमें कोई हार्म नहीं है कि वो तो मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो वहां पे आपके लिए कार जो है वो ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है आपको। ओके, नाउ इसी से जो हमने अभी फोर्स को लिया बेटा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको हम कैसे निकालेंगे, दैट इज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। This is the final momentum and this is initial momentum. Okay, momentum को हम किससे लिखते हैं बेटा, P से, PF, and this is PI, और PF is M into V and PI is M into U. M is mass, V is velocity, U is initial velocity. Okay, divided by time. Now it is change in the rate of momentum. So we can take M common, V minus U by T. So M is equal to V minus U by T is final velocity minus initial velocity. Sahil Jeet. Yes, Sahil Jeet. F is equal to M. Sahil Jeet. Sahil Jeet. Ma'am, V minus U upon T is acceleration. Is acceleration and we denote it by A. So this is acceleration, right? So एक नया फॉर्मूला हमारे पास आता है बेटा, force is equal to M into A, that is mass into acceleration. Now what is the unit of force? Mass is given by kilogram and acceleration is meter per second. And for this we have given a common unit that is called Newton, and Newton is the SI unit for the force. Yes students, मैंने इसको कैपिटल N क्यों लिखा? Can I write it small n also? क्या न्यूटन को हम स्मॉल n से बता सकते हैं या नहीं? ये कैपिटल N क्यों लिखा? Yes Simran, नहीं अनायशा, yes अनायशा you tell. कहाँ गया अनायशा का? नहीं, okay, सबके हाथ नीचे हो गए. Yes Simran, you tell now. Ma'am, you have made a mistake, ma'am. Meter per second square, ma'am. Acceleration. Yes, meter per second square. That is velocity is meter per second. और टाइम भी है तो 1 सेकेंड और आ गया, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये सिमरन, ये कैपिटल एन ही लिखना है क्यों? मैम कैपिटल एन फोर्स को डिनोट करता है, पर मैम स्मॉल एन नहीं करता मैम, वो किसी और चीज को डिनोट करता है. ओके, यस रितंजय. यस अनायशा, यू टेल बेटा. मैम क्योंकि जब मैम हम कैपिटल एन में लिखते हैं मैम एन को, मैम जब मैम स्मॉल एन में हम लिखते हैं न्यूटन को, तो मैम पूरा हमें सेंटेंस मतलब पूरा वर्ड लिखना पड़ता है न्यूटन, और मैम जब हम कैपिटल से डिनोट करना होता है तो हम बस एन लिखते हैं. ओके, यस देवा. हम क्योंकि जो न्यूटन है वो एक जो एक पर्सन का नेम है इसलिए. यस, ऐसी जितनी भी आपको यूनिट्स मिलेंगी जिनको किसी पर्सन के नाम पे, साइंटिस्ट के नेम पे दे रखा है बेटा, उन सारी यूनिट्स को आपने कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है. ओके, like Newton is the unit given in the honor of scientist Newton, so it is denoted by capital N. Like energy has the unit joules and that is denoted by capital J because that
is based on a scientist name, that is Joule. Okay. Yes, Hardik, do you have any doubt? Okay, next is so when we apply the force, there is the change in the momentum. इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब आप हार्ड सरफेस पे गिरते हो तो आपको चोट ज्यादा लगती है, बट अगर वहां पे नीचे कुशन लगा हुआ हो या मैट्रेस हो तो उसके बाद आप उसके ऊपर जब गिरते हैं तो आपको चोट कम लगती है, ऐसा क्यों? यस आर्यन, यू टेल। क्योंकि जो हार्ड ऑब्जेक्ट रहता है उसका मास ज्यादा रहता है और जो सॉफ्ट रहता है उसका मास कम रहता है, तो मोमेंटम में m उसका रहता है। ओके, यस, एनी अदर? यस सिमरन। मैम क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे होते हैं तो हमारा मोमेंटम बहुत ज्यादा है, ऐसे में अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक या टक्कर करेंगे तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, इसीलिए हम नीचे कोई सॉफ्ट चीज लगाते हैं जिससे हमारा जो मोमेंटम है वो कम हो जाए थोड़ा। ओके, यस देवा। मुझे लगता है कोई फ्रिक्शन से कोई मतलब इसमें नहीं। ओके, रितंजय। मैम जब हम लोग कुशन या फिर कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पे गिरते हैं तो उसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट आते हैं उसकी कारण से मैम उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो टाइम इंक्रीज होने के कारण मैम उसका जो फोर्स होता है वो लो हो जाता है, क्योंकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। एक्चुअल में देखो, जो हमारी बॉडी पे जो हमें हार्म पहुंचती है, हमें जो चोट लगती है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स जो है वो हमारे ऊपर कैसे लग रहा है? ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इफ वी विल इंक्रीज द टाइम फॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम, जब आप देखो बेटा एकदम से आकर के बिल्कुल हार्ड सरफेस है और उस हार्ड सरफेस पे आकर के जब आप गिरोगे या कुछ भी चीज गिरती है तो क्या होगा? एकदम से उसका जो मोमेंटम है, जो पहले उसका मोमेंटम था, अब यहाँ पे आकर के उसका जो मोमेंटम है दैट विल बिकम जीरो, क्योंकि उसने तो रेस्ट पे आ जाए। सो देयर इज सडन चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बट अगर यहाँ पे एक मैट्रेस लगा है, कुशन लगा हुआ है, तो वो यहाँ से जब यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे अब वो धीरे धीरे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके धीरे धीरे मैट्रेस जो है जब वो अंदर की तरफ दबता है तो वहां पे उसका जो फोर्स लग रहा है उसको उसने क्या कर दिया, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है दैट टेक मोर टाइम। सो ड्यू टू मैट्रेस और कुशन द टाइम हैज इंक्रीज्ड। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द टाइम, आना उसने रेस्ट पे है बेटा, बट उसका रेस्ट पे आने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया, और टाइम इंक्रीज होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गई और फोर्स भी डिक्रीज हो गया, इसलिए वहां पे कम जो आपको हार्म है वो कम चोट लगती है। एक और आप देखिए, आपने ये तो बहुत अच्छे से सुना भी होगा, जो एक क्रिकेटर होता है जब वो बॉल को कैच करता है तो कैच करके वो अपने जो हैंड्स हैं बेटा उनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रखता है। तो जब वो बॉल को कैच करता है तो उसको ये होता है कि वो साथ में पकड़ के साथ में नीचे की तरफ हाथ रखता है। क्यों? अब वो बॉल के साथ साथ हाथ को नीचे ले आता है, ऊपर ही क्यों नहीं रख लेता, वहीं पे बंद क्यों नहीं कर लेता? यस अनुज। यस अनुज, यू टेल। यस मैम। मैम क्योंकि वो मैम वेलोसिटी अचानक मैम अगर वो हाथ वहीं पर रखेगा तो वेलोसिटी अचानक जीरो हो जाएगी, और मैम उसे नीचे बॉल के साथ हल्का सा नीचे की तरफ खींचेगा तो मैम वेलोसिटी को जीरो होने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, जिसके कारण मैम उसे कम चोट लगेगी। यस बिल्कुल ठीक। तो वही सेम रीजन है बेटा क्वेश्चन वाला। तो जब वो बॉल के साथ साथ अपने हैंड्स को भी नीचे ले आएगा तो वहां पे क्या हुआ, अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज कर दिया, तो उसके कारण जो हैंड्स पे फोर्स लगेगा दैट विल बी लेसर, वो कम लगता है, और उस कारण से उसके पर्सन के हाथ पे ज्यादा चोट नहीं लगती। ठीक है। ऐसे ही आपको एक और बताऊं, जैसे ही हम देखते हैं ये
क्या कहते हैं उसको, रेसलिंग देखते हैं, मारते हैं, है ना। तो अगर अब वहां पे भी देखो वो लोग जो है उनको ये चीज पता है कि जिस डायरेक्शन, आपने देखा होगा उनको, जो जिस डायरेक्शन में उनके ऊपर वो जब दूसरे वाला जो फाइटर है वो अपना हैंड लगाता है है ना, तो वो क्या करता है उसी डायरेक्शन में अपनी बॉडी के उस पार्ट को मूव कर लेता है, जिसके कारण उसको जो चोट लगती है वो बहुत कम लगती है। नहीं तो हमें लगता है ना कि ये कैसे इतनी इतनी चोट खा के भी फिर खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर कुछ होता नहीं है क्या। तो वो अपने उसी चीज को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, उनको ये लॉ पता है, तो उनका जो पूरी बॉडी है ना बेटा वो उसी डायरेक्शन में मूव करवा लेते हैं, जिसके कारण वो एक्चुअल में उसका जो मोमेंटम की रेट का जो है उसको धीरे से चेंज करवाते हैं, जिससे टाइम बढ़ जाता है, उसको जो फोर्स अप्लाई होता है वो कम हो जाता है। ओके, इज दिस क्लियर? ये स्टूडेंट्स समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नवनीत कौर। Ma'am, any action there is equal and opposite reaction? Yes, any reaction has an equal and opposite reaction. कुछ चेंज करना चाहते हो इसमें तब तो रेज हैंड रखो, अदरवाइज लोअर योर हैंड्स। ओके, अनायशा, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन का मीनिंग क्या है? यस रितंजय। मैम मीन्स अगर हम लोग किसी भी चीज पे जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स हमें भी लगेगा, इसका मतलब ये है। ओके, यस नमन। मैम उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। यस, तो ये मैग्नीट्यूड किस चीज का है बेटा? नमन यू टेल बेटा, मैग्नीट्यूड किस चीज का है? Yes, Simran. Ma'am, according to third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. मैम जो ये एक्शन और जो ये रिएक्शन के जो होते हैं, तो मैम ये दोनों इक्वल होते हैं, पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे में, इसीलिए ये अलग अलग। मैं पूछना चाह रही हूँ बेटा, ये एक्शन और रिएक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? उसको हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रहे हैं, तो एक्शन और रिएक्शन क्या चीज है? मैम फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉल दीवार पे फेंकी और फिर वो बॉल वापस दीवार से आ जाती है। हमने फोर्स जो लगाया वो अभी तक बॉल पे लगाया, पर जो वो वापस बॉल आ रही है मैम, वो दीवार का जो फोर्स है वो उसे वापस करवा रहा है। मीन्स फोर्स हुआ ना ये। एक्शन और रिएक्शन क्या हुआ बेटा? फोर्स। ठीक है। सो whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts on equal and opposite force on the body. This is the correct definition of third law. No doubt हम लोग बिल्कुल ठीक लिखते हैं, बहुत easy हो जाता है हम लोगों के लिए इस चीज को याद करना, that every action has equal and opposite reaction. but वो action और reaction क्या है बेटा? That is the force. अगर हम किसी पे फोर्स लगाएंगे तो सामने वाली चीज जिस पे हमने फोर्स लगाया वो हमारे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स को अप्लाई करता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो देखिए क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मतलब लाइक हम वॉक कर रहे हैं। यस सिमरन, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, तो हमारे पास देखिए हम जब वॉक करते हैं तो यहीं पे ये लॉ लग जाता है। जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी वॉक में क्या ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है? यस देवा।
यस मैम एप्लीकेबल है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैर दो है वो पीछे की तरफ होता है, हम तो जो पीछे से हमारे फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमें आगे ले जाता है। यस, हम अर्थ पे एक फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ और अर्थ हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है आगे की तरफ ताकि हम आगे की तरफ चल पाए। ठीक है, हम पहले अर्थ पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो अर्थ हमारे ऊपर उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाएगी। नहीं किसी को भी ये चीज समझ में आए तो बहुत आसान सा तरीका है, आप क्या करो, अपने हाथ को दीवार पे हल्के से मारो, आपको हल्का सा अपने हाथ पे दर्द होगा, बहुत तेज मार के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जितनी जोर से दीवार को मारा, दीवार उतनी ही जोर से आपके हाथ पे हिट कर रही है, आपको उतनी ज्यादा चोट लगती है ना। अब दीवार पे हल्का सा टैप करो या टेबल पे हल्का सा टैप करो तो आपके हाथ पे हल्का सा फोर्स लगता है, और जब आप बहुत तेजी से उसको हिट करते हो तो आपके हाथ पे खुद पे ही लगता है। तो खुद पे ही क्यों लगा? क्योंकि टेबल ने अब कहा अभी मेरे को ही मारते रहोगे, ये लो अब तुम भी खाओ, तो वो टेबल आपको साथ में हिट करता है। बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, जिस किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपके हाथ पे जो हिट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जिसको आपने हिट किया वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपके हाथ पे लगा रहा है। ठीक है, सो दैट एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर द फोर्स। एक्शन आपने किया, सामने वाले ने उसका रिएक्शन में आपको एक फोर्स दे दिया, राइट। इसको जब हम ये जो बोट की मूवमेंट है, बोट चलती है, उसमें क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ओके, अनुज है हमारे पास, 9th क्लास का स्टूडेंट है शायद। यस अनुज, यू टेल। मैम जो बोट चलाने के लिए जो रोप यूज किया जाता है मैम, उससे मैम एक्शन ये होता है कि वो पानी को पीछे की तरफ धक्का देता है, और रिएक्शन ये होता है कि पानी मैम पीछे से उसे आगे की तरफ उसे मैम धक्का देता है, जिसके कारण बोट मूव करती है। बिल्कुल ठीक, पानी को पीछे की तरफ मूव किया जाता है, और जैसे जैसे पानी पीछे जाता है, हम पीछे पानी को पीछे धकेल रहे हैं, पानी हमें आगे मूव करवा रहा है। ठीक है, तो दिस इज every action has equal and opposite reaction। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके कारण जो हमारे रॉकेट्स हैं वो मूव करते हैं। रॉकेट की मोशन देखिए आपने, रॉकेट क्या ऐसा फोर्स लगाता है कि वो ऊपर चला जाता है? यस रितंजय। मैम रॉकेट का जो फायर होता है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और वो रॉकेट से बहुत हॉट गैसेस विद हाई स्पीड पीछे की तरफ जाती हैं, बहुत ज्यादा फोर्स वो नीचे की तरफ लगाता है, और उसी के कारण उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है बेटा, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये एप्लीकेशंस हैं बेटा। और आपको एक चीज बताऊं, इनका जो ये जितने भी न्यूटन्स के लॉ हैं बेटा, ये लॉ सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है ना। उसने देखा ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब न्यूटन वाज अ वेरी गुड, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया करते थे, और ऑब्जर्व करके कंक्लूड करने की कोशिश करते थे कि क्या इसमें से निकल के सामने आता। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो उन्होंने दिया, और किस चीज से सोचा कि सेब एप्पल जो है वो गिरा, है ना, एप्पल गिरा तो ये तो सब देखते होंगे। अब एक पर्सन ने सोचा और उसके ऊपर काम किया, तो पता चला भी देयर इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। सो ये सारे के सारे 3 लॉज जो है बेटा, ये मतलब ये प्रैक्टिकल वे में, मतलब लैब में बैठ के डिसाइड नहीं किए गए, ये डेली लाइफ के सारे एग्जांपल्स पर बेस्ड हैं। आज तक इनका कोई और मतलब वो नहीं मिला, इनको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला जो इनको फॉलो नहीं करता हो। ओके, समझ आ गया बेटा? There is one law of conservation of momentum. What is that law? Yes, Tanjay, you tell beta. मैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस होता है कि द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी
velocity is equal to the sum of नो मैम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है एफ वी वन प्लस एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू एम यू वन प्लस एम यू टू। ओके, हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल। यस आकांक्षा, आकांक्षा यू टेल बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि जो कोलिजन हो रहा है या फिर जो एक्शन हो रहा है उसके पहले मोमेंटम और उस कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम होता है। यस, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Okay, this is the law of conservation of the momentum, and due to this we मतलब ये जो लॉ आया है बेटा, ये लॉ आया ही थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आता है। इसी कारण से जो आपका ये एरोप्लेन है, जेट एरोप्लेन है या रॉकेट है, वो मूव करते हैं, क्योंकि जो पहले मोमेंटम है और बाद में जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए, इसकी वेलोसिटी है बच्चे u1 और इसका मास है m1, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है b, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये दोनों एक दूसरे की मतलब कोलाइड करते हैं, और कॉलिजन के बाद ये अपना अलग अलग किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट करती है। Now its mass will remain same but velocity gets changed, and its mass will remain same but velocity changes to v2. So according to law of conservation of mass, m1 u1 plus this is 2, m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, right? Now okay, there is one question. For this, okay, इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। Having velocity 5 meter per second, hit another object B of mass 0.2 kg at rest. After collision, both stick with each other and starts motion. Find velocity of these two. बाद में उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई वो फाइंड कर। यस, करेंगे आप लोग? यस करिए बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व।
Yes, Anuj. Ma'am, the answer is 1.66 meter per second. Okay, 1.66 meter per second. निकाल भी लिया. ईशान. Yes, ma'am. The answer is 5/3 meter per second. 5/3 means 1.66. Okay. So M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 plus M2 V. Why I have written V only? Because वो दोनों एक साथ stick कर गए, चिपक गए, है ना? Now that is one object. तो दोनों का mass तो add हो गया. अब now they both will move with the same velocity. So mass 0.1 into 5 and its velocity is 0 because that second object is at rest. 0.1 plus 0.2 and the velocity is, we have to calculate. So 0.5 divided by 0.3 is equal to velocity. So 5/3, that is 1.66 meter per second. ठीक है, तो एक 5 मीटर पर सेकेंड का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे रेस्ट पे ऑब्जेक्ट के साथ टकराया और उसको अपने साथ ही लेके आगे मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया. क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे. यस. नाउ नेक्स्ट इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू टेक. बस जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी. सडनली ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए और उसके कारण उसको 4 सेकेंड्स स्टॉप होने में लगे. तो बताइए कितना फ्रिक्शन फोर्स उस पे लगा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? यस अनायशा. मैम 15. 15. ओके. -15. -15. मैम इसमें हमने मैम जो फाइनल वेलोसिटी थी उसे मैम 0 दी क्योंकि मैम हमें रेस्ट में आना है. तो मैम फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. और मैम इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड. यस. और मैम जो टाइम टेकन है वो मैम 4 सेकेंड्स है. तो मैम हम फाइनल वेलोसिटी को माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से और डिवाइड करेंगे मैम टाइम टेकन. यस स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेना होता है जब भी चेंज लेते हैं. मतलब इवन मैं अब देखो, अब हम तो पढ़ चुके, हम अपनी इतने सारे और काम करते हैं, जहां कहीं पे भी हमने चेंज को कंसीडर करना होता है, दैट चेंज इज ऑलवेज टेकन एज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, तो चेंज में फाइनल चाहे हमारा 0 था, इनिशियली वो 60 मीटर से है, तो 0 - 60 डिवाइडेड बाय 4 ये आपका वैल्यू आई ए की. और जो बस है, बस का मासूदीन का फोर्स कैसे निकलेगा? मास ऑफ बस इज
ज्यादा हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है ये आंसर आ गया इन दी न्यूटन। तो आपको यहाँ पे मास भी गिवन होगा और ए भी गिवन है इस टाइप से। यस आसव। मैम यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू क्या लेंगे? ये दे रखी बेटा, मैंने अभी दी बेटा, पहले नहीं दी थी ना, आई फॉरगॉट। ओके मैम, मैं भूल गई थी। तो मास आपको गिवन होना चाहिए बेटा, तभी आप निकाल सकते हो। -15 इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओनली, चेंज इन द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी। तो मास आपको मैंने अभी दिया 1500 किलोग्राम। तो जो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई करके और आंसर आएगा, और वो आंसर किस में आएगा बेटा, न्यूटन में। और ये नेगेटिव फोर्स से आप क्या समझते हो बेटा, माइनस में आ रहा है फोर्स, जो भी फोर्स आएगा दैट इज इन माइनस। वाई, कि वो नेगेटिव में क्यों आया? यस आर्यन। मैम क्योंकि जो वो फोर्स है वो अपोजिट है। यस, बिकॉज दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बस, इसीलिए वो स्टॉप होगी। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, राइट? ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए अच्छा होता है या इट इज गुड फोर्स और बैड फोर्स फॉर अस? यस सिमरन। मैम इट इज गुड एंड बैड बोथ। बिल्कुल ठीक। गुड कहाँ पे है, कोई एक एग्जांपल बताओ जहाँ पे ये गुड है। मैम हम लिखते हैं जब नोटबुक में, तो मैम फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है। वापस बोलो। मैम जब हम बोर्ड में या फिर नोटबुक में लिख रहे हैं तो मैम वो हाँ। फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। यस बिल्कुल ठीक है, वहां पे भी फ्रिक्शन है, इसीलिए आप उसको लिख पा रहे हो, है ना। अगर वो बहुत ज्यादा स्मूथ पेपर आपके पास हो तो उसके ऊपर आपका पेन चल ही नहीं सकता। इवन यू आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, यस रितंजय, मैम यू टेल अबाउट। हाँ मैम यो जितना ज्यादा अच्छा होता है फ्रिक्शन उतना बुरा भी होता है। हाँ फॉर एग्जांपल मैम जो इंडस्ट्री होती है वो हाँ इंडस्ट्रीज को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, या फिर कोई स्पेसिफिक उसे अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ता है, तो उससे बहुत से अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स को फोर्स करना पड़ता है। अगर नहीं होता तो वो इजीली चले जाते, या फिर कोई मशीनरीज होता तो वो जल्दी मूवमेंट होता, एनर्जी कम यूज होता। यस, जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा वो यूजफुल है। आप जैसे इस बच्चे ने बताया, पेपर पे लिख सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, वी आर एबल टू वॉक जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बट इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, लाइक अगर आपने अभी रूम में फैन भी चल रहा होगा तो फैन आपको पता है मूव तो कर रहा है, बट वो कॉन्टिन्यूसली आप जब अगर उसको टच करके देखे तो वो बहुत गर्म हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे वो अगेंस्ट दी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एयर का फ्रिक्शन है वहां पर, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो गर्म हो रहा है। उसको कुछ अपनी जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, वो सारी की सारी एनर्जी अपनी वर्क करने पे यूज नहीं करता, कुछ एनर्जी उसकी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। ठीक है, आप भी जब चलते हो तो चलने में जितना आपका मतलब आप एनर्जी लगा रहे हो बेटा, वो एनर्जी कुछ फ्रिक्शन के कारण वेस्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन जो हमारी मशीनरी होती है बेटा वो धीरे धीरे खराब हो जाती है ना। वो उसको आपको ल्यूब्रिकेंट यूज करने पड़ते हैं। दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन। यस अदिति। मैम फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। यस बिल्कुल ठीक, फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। तो जो मशीनरी के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो जब मूव करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना। तो दैट इज कॉल्ड वेयर एंड टियर। और हीट भी, जो मशीन है जब वो मूव करती है अगेंस्ट द फ्रिक्शन तो वो हीट हो जाती है, जिससे वो मशीन कई बार आपने देखा होगा मिक्सी वगैरह भी अगर आप खूब ज्यादा टाइम तक चला लो तो वो बंद हो जाती, खत्म हो जाती, चलती नहीं, उसके बाद जाम हो जाती। तो ऐसा क्या है, क्योंकि ड्यू टू दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, सो अभी हमने जैसे मैंने बात की कि जैसे फैन के लिए कि हम उसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं जिससे वो वर्क करता है, और जितनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं वो सारा का सारा एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ऐसा, ये बात समझ में आती है आपको?
No, it's not possible to remove friction totally from any surface. Generally we take ice as वो ice को हम ऐसी surface ले लेते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी friction नहीं है, but कुछ ना कुछ friction तो होता ही। जैसे हम जनरली कहते हैं भी आइस स्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बट बिल्कुल बिना, तभी वहां पे वो स्लाइड करते हैं ना, वॉक नहीं कर सकते, उस पर स्लाइड करते हैं, बट टोटली फ्रिक्शनलेस कोई भी चीज नहीं हो सकती ऑन अर्थ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अभी एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ बेटा, दैट इज प्रेशर। नाउ व्हाट इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स? यस, और भी स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं, बट नमन बताओगे बेटा? क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स? प्रेशर क्या है? ओके, वही हाथ है। यस सिमरन, यू टेल बेटा। Ma'am, pressure is equals to force upon area. Yes, force per unit area, that is called pressure. I have 2 nails, मतलब वो कील, ठीक है, और मैं चाहती हूँ इनको मेरे पास एक कुछ है, मुझे वो हैंग करना है, तो मेरे पास ये 2 टाइप की नेल्स हैं। मैं इन दोनों नेल्स में से कौन सी नेल को वॉल पे इजीली लगा सकती हूँ? तो आपको ये फोर्स पर यूनिट एरिया वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। यस, साहिल जीत कौर। मैम, जो फर्स्ट वाली नेल है उसे आप इजीली इंसर्ट कर पाओगे वॉल में? यस मैम, बिकॉज जो एरिया एंड प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मैम इधर एरिया मैम कम है, तो because this nail is pointed and due to pointed nail when I will apply force on this, तो ये force जो है वो बहुत less area पे जाएगा, तो इस पे जो pressure apply होगा that will be more because pressure and area are inversely proportional to each other. तो आप इस टाइप की जो नेल होती है उसको आप इजीली दीवार में इंसर्ट कर सकते हो वॉल, है ना? समझ आई ये वाली बात? जो डैम होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो इस टाइप की होती है। वाई? इसके ऊपर आपका जो मतलब या ब्रिज ले लो, है ना, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो हमेशा नीचे से ब्रॉड होती हैं और ऊपर, तो वो ऐसे भी तो सीधी ऐसे भी बन सकती थी या ऐसे भी बन सकती थी, ऐसी शेप की क्यों बनाई? नीचे से ब्रॉड क्यों बनाई उनको? यस हार्दिक। ओके रितंजय, यू टेल। नहीं, अदिति यू टेल बेटा। Ma'am, because ma'am, from the bottom, ma'am, the area is more, and ma'am, force will be less. So ma'am, pressure will be less. Force तो same रहेगा बेटा। Sorry, ma'am, pressure will be less. हाँ, pressure will be less. तो क्या होगा अगर, तो देखो जो आपका इतना बड़ा ब्रिज बनना है उसके ऊपर से इतना ज्यादा ट्रैफिक भी जाएगा, है ना, इसका जो सारा का सारा वेट है, अगर तो वो ये इस टाइप की वॉल बनाते हैं तो वो सारा का सारा प्रेशर इसके ऊपर, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया तो ये नीचे ही चला जाएगा। तो इसको ब्रॉड बनाना है ताकि यहाँ पे जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये अपने प्लेस पे वहीं पे रहेगा।
इसके कारण वो, नहीं तो सारा का सारा ब्रिज नीचे की तरफ ही मूव कर जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए दिस इज रिक्वायर्ड। तो आपको कहीं पे प्रेशर कम करना हो या प्रेशर ज्यादा करना हो तो हम वहां पे एरिया को चेंज कर देते। ओके, यस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? यस अनुज। मैम पास्कल। पास्कल। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? पास्कल। पास्कल is also given on the name of a scientist and it is written as PA, कैपिटल P और A, दो वर्ड, दो अल्फाबेट है बेटा इस यूनिट, इसके अंदर, ठीक है, दिस इज पास्कल। ओके, ये तो था बेटा प्रेशर जो हम, फोर्स जो हम लगा रहे थे। क्या आपके चारों तरफ जो एयर है वो भी कोई प्रेशर लगाती है? यस देवा। यस मैम, वो भी लगाते हैं, वो उनका प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। यस, 1 उसको ATM। हम, यस 1 ATM, उसको भी हम पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, तो एयर का प्रेशर हमें फील क्यों नहीं हो रहा? एयर ने प्रेशर लगाया, आप सबने कहा यस मैडम एयर प्रेशर लगाती है, तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा कि एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है? अरहम, यू टेल बेटा। Ma'am, because we are so close to the ground. We are so close to Ground. नो, ग्राउंड पे तो ज्यादा प्रेशर है बेटा एयर का। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर प्रेशर को फोर्स के तरीके से ही समझो। अभ्य सुचिता। मैम जो हमारे, मैम जो बॉडी के अंदर से भी प्रेशर लग रहा होता है, तो जो मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है मैम, दोनों में बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक, ये बैलेंस फोर्स हो गया एक टाइप से, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, उसी चीज को आपने प्रेशर कह दिया। एटमॉस्फेयर का भी आपके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, आपकी बॉडी को गॉड ने उसी प्रेशर पे बनाया है। आपके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बिल्कुल सेम है। बहुत लोग जब ऊपर जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तो उनको नोज से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर लेस हो जाएगा, अंदर का प्रेशर हाई है, तो वो ब्लड जो है ड्यू टू हाई प्रेशर, अंदर प्रेशर ज्यादा, इसलिए वो बाहर की तरफ आ जाता है, इसलिए बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है नोज से ब्लीडिंग। यस अदिति, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम fishes also ma'am, ma'am when ma'am we take out from the water ma'am, fishes blood vessels ma'am bursts ma'am due to change in pressure. ठीक है, तो एयर का जो प्रेशर है वो आपको फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो एयर का प्रेशर है वो उतना ही प्रेशर आपके अंदर भी है। ओके, इसीलिए आपको वो जो एयर का प्रेशर है वो फील नहीं होता। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, एट हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ द एयर इज लेस। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ऊपर कम हो गई या ज्यादा होगी? हाई एल्टीट्यूड्स पे मींस माउंटेन्स पे। यस आर्यन। मैम ऊपर मैम जा करके वो तो लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी ऑक्सीजन की लेवल। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो उसका प्रेशर भी कम होगा। तो क्या वो ऑक्सीजन हमारे अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ब्लड में डिसॉल्व होगी? अगर कम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया। दैट
प्रॉब्लम इज कॉल्ड एनॉक्सिया। और ये माउंटेन्स पे जाने वाले जो लोग हैं वो इसको फील करते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, एयर का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व कम होती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं जाएगी, तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा। रेस्पिरेशन से हमें मिलती है एनर्जी, एनर्जी नहीं मिलेगी, वो पर्सन अपने आप को उसको फटीग फील होगा कि वो बहुत थका हुआ है। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। यस आदित्य राजपूत। मैम मैंने बहुत बार देखा है मैम, जब भी हम लोग मैम मतलब कि माउंटेन्स पे जाते तो फिर मैम थोड़ा भारी होने लग जाता है। हाँ, तो उसका रीजन क्या है कि सर भारी क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर का जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ गया, बाहर का प्रेशर कम। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन कम है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व क्योंकि आपके अंदर ही कम जा रही है। अब वो डिसॉल्व नहीं हुई तो आपके जो हर एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो आपके ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम कैसे करेगा, तो वो हैवीनेस फील होती है। ठीक है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया। आपने कोरोना में वर्ड सुना होगा हाइपोक्सिया, क्योंकि कोरोना में भी ये कोविड-19 में भी एक प्रॉब्लम थी हाइपोक्सिया की, लोगों को ऑक्सीजन की वो लंग्स काम नहीं कर रहे थे, तो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे ना, तो उसके कारण से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको वहां पे हाइपोक्सिया कह रहे हैं। तो हाइपोक्सिया एनॉक्सिया मींस लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यस रितंजय। मैम आई हैव अ डाउट। यस मैम